سیلابی صورتحال کی تو آپ کو بتائیں ضلع ملتان کی حدود میں دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذرائع کے مطابق ضلع ملتان میں 1.5 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا آئندہ 24 گھنٹے تک گزرتا رہے گا۔ سیلابی ریلے کے باعث ہزاروں ایکڑ پر کھڑی گنے، جوار، چارہ، سبزیوں کی فصل تباہ، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانے لگا۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی رضا ملک نے۔ جی رضا ملک، اس حوالے سے تفصیلات بتائیے گا۔ میں ضلع ملتان کی حدود میں اس وقت نچلے درجے کا جو سیلابی ریلا ہے وہ گزر رہا ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ جو ہیڈ تریمو پر 2,02,000 کیوسک پانی جو میکسیمم گیا، اب وہاں پانی کی سطح کم ہو کر 1,60,000 کیوسک تک پہنچ گئی ہے، جبکہ آگے ہیڈ پاشنات پر جو پانی کی صورتحال ہے اس وقت وہاں پر 86,000 کیوسک پانی اس وقت وہاں سے گزر رہا ہے، اور اس دوران یہ جو 1.25 لاکھ کیوسک پانی ہے یہ ضلع ملتان کی حدود میں سے گزرنے کا عمل جو ہے یہ شروع ہو گیا ہے، اور جو ذرائع ہیں پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے، محکمہ آبپاشی کے، ان کا کہنا ہے کہ لگ بھگ 2 لاکھ کیوسک کے قریب پانی جو ہے اس کا ریلا جو ہے وہ ضلع ملتان کی حدود سے گزرنے کا عمل آئندہ 24 گھنٹوں میں مکمل کر لے گا، اور جو ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ ہیڈ پاشنات پر جو ہے وہ پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، کس قدر بلند ہوتی ہے، جبکہ اس قدر پانی کے باعث جو ضلع ملتان کی حدود میں جو نچلے درجے کا جو سیلاب ہے اس کے باعث ہزاروں ایکڑ پر کھڑی گنا، جوار، چارہ اور سبزیوں کی جو فصل ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ پانی کی سطح میں ابھی بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ضلع انتظامیہ ان کا کہنا ہے کہ فلڈ کنٹرول روم جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، جس میں ہر لمحے کی سچویشن کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو 112 محکمہ صحت، لائف سٹاک اور ایمرجنسی کے دیگر ادارے بھی موجود ہیں جو بیٹ کے علاقے ہیں، جو نشیبی علاقے ہیں۔ نچلے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ رضا ملک، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں ملتان کے علاقے قاسم بیلا محمد پور گوٹھا پانی کی وجہ سے پتھروں والا بند ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے پانی قریبی فصلوں میں داخل ہو گیا۔ پانی کے مزید بڑھنے کے باعث محمد پور گوٹھا کالونی میں پانی پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی علی ریاض نے۔ علی، بتائیے گا، پانی محمد پور گوٹھا کالونی میں پہنچنے کا خدشہ ہے؟ جی بالکل، شہر ملتان اور اس کے گرد و نواح کے جو علاقے میں ہیں اس میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر جو حالات ہیں وہ بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے علاقے قاسم بیلا کے محمد پور گھوٹا میں، اور یہاں کے مناظر یہ ہے، میرا کیمرہ مین اشرف گجر آپ کو دکھا سکے کہ پانی جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو کھڑی تیار فصلیں ہیں اور یہ باغات ہیں آم کے، پانی یہاں تک پہنچ چکا ہے، اور کچھ ہی دیر میں اگر پانی کے اس کے متعلق اقدامات، حفاظتی اقدامات نہ کیے گئے تو یہ پانی جو ہے اس محمد پور گھوٹا کالونی میں جو مکین ہے ان کے مکانوں تک ہی پہنچ جائے گا۔ یہ 2 روز کے دوران ہی جو پانی پہلے پیچھے تھا وہ کافی آگے تک بڑھ چکا ہے، اور یہ صورتحال جاری ہے، جس کے پیش نظر یہاں پر جو علاقہ مکین ہے وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں کھڑی تیار فصلیں ہیں وہ بالکل پانی کی وجہ سے برباد ہو چکی ہے۔ اور میرے بالکل پیچھے یہاں پر جو جہاں پر جو بنایا گیا تھا پتھروں والا بند بنایا گیا تھا، جو کہ علاقہ مکین نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا تھا، جو کہ پانی کی وجہ سے اب بالکل ٹوٹ چکا ہے، اور یہ جو پورا علاقہ محمد پور گھوٹا جو ہے کسی بھی وقت جو پانی کے اثر میں آ سکتا ہے، اور اسی حساب سے یہاں پر ابھی تک نظامیہ کی جانب سے انتظامات جو خاطر کا نہیں کیے گئے ہیں۔ علاقہ مکین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد یہ جو خطرناک صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اس کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ جی علی ریاض، آپ ہمیں بتا رہے تھے پانی محمد پور گوٹھا کالونی میں پہنچنے کا خدشہ ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ڈی جی خان میں بھی دریائے سندھ میں غازی گھاٹ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ڈی جی خان سے جامپور تک کے تمام بیٹ کے علاقے اس وقت سیلابی صورتحال میں ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ محسن الملک نے۔ محسن الملک، آپ بتائیے گا کہ ڈی جی خان میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے؟ جی بالکل، دریائے سندھ بھی اس وقت بپرا ہوا ہے۔ اگر کالا باغ کی سچویشن دیکھیں تو اس وقت وہاں پر بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے، لیکن یہ 24 گھنٹے کے اندر اس وقت غازی گھاٹ جس مقام پر میں موجود ہوں وہاں پر اس وقت بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے، کیونکہ 24 گھنٹے پہلے یہاں پر درمیانے درجے کا سیلاب تھا، اور ابھی بھی پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ آئندہ 72 گھنٹے جو ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہیں، کیونکہ پیچھے سے ایک اور ریلا آ رہا ہے۔ پہلے سے یہاں پر جو مزید جو ہے لوگ جو ہیں یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ 12 ایسے بھیٹ کے علاقے ہیں دریائے
सिंध के डीजी खान के अंदर, जो कि इस वक्त मुकम्मल डूब चुके हैं। माल मवेशी उनका इस वक्त डूब चुका है। अगर मैं यहां पर बताऊं कि किस तरीके से नकल मकानी हो रही है लोगों की और किस तरीके से यहां पर ये आबादी वाले इलाकों में नीचे अगर मेरे देखें तो यहां तक पानी पहुंच चुका है। आबादी वाले इलाकों में यहां से नकल मकानी अपनी मदद आप हो रही है। दरिया सिंध का ये इलाका है, डीजी खान का ये इलाका है, पर ये सूरत हाल है और खास तौर पर लोग जो है अपने मवेशियों को बचाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं और साजो सामान जो है वो भी अपनी मदद आप लेके आ रहे हैं। कई लोग ऐसे बता रहे हैं कि उनका साजो सामान तक इस वक्त दरिया बुर्द हो गया है क्योंकि पानी चढ़ रहा है। हाँ जी, कितों आने पे भाईजान? दरिया से जनाब सारा पानी साल गए, सारा माल उड़ गए, भोल उड़ गए, घाल उड़ गए, सारे दाने आटा दरिया सिंध साको लोह लीते। हाँ जी, मवेशी ठीक है? तो मवेशी इन जवान दी है गांव लोड़ गई है, गाँव लोड़ गए। अच्छा, कितने गाँव हैं तुम्हारे यहाँ? कितने लोग इन पिछू जड़े हाली भी फंसे वो बहुवन से। अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाएं यहाँ से तो वो आबादी पीछे है जो कि थोड़ी सी ऊंची है और वहां पर जो है कई लोग फंसे हुए हैं। कश्ती सर्विस नहीं है यहाँ पर और कश्ती ना होने की वजह से लोग जो है वो तैर के आ रहे हैं और इसी दौरान अपने माल मवेशी भी लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वक्त जो है मैं इस वक्त दरिया सिंध के अंदरूनी इलाके में हूँ। अंदरूनी इलाका इस वक्त काफी खौफनाक मंजर पेश कर रहा है। पीछे जो है मवेशी ठहरे हैं और मवेशियों के साथ साथ उससे पीछे आबादियों के एरियाज हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा सूरत हाल पेश कर रहे हैं बुरी, और यहां पर कश्ती सर्विस या फिर किसी भी इमदाद की आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लोगों का ऐसा मानना है क्योंकि यहां पर कई आबादियां इस वक्त भी दरिया के अंदर हैं और दरिया बुर्द हो चुकी हैं। पत्थर रखे हुए हैं साइलों पे, सामने इंडस हाईवे है, इंडस हाईवे की तरफ लोग मुंतकिल हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊंची जगह पे है इंडस हाईवे। तो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं तो मेरा जो पानी है वो ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आगे जाएंगे तो मजीद पानी है और पानी चढ़ता आ रहा है। लेकिन जो महकमा मौसमियात है उनका कहना है कि 2 दिन जो है वो बारिश नहीं होगी, लेकिन 2 दिन बाद बारिश होगी, जिसके बाद ये पानी मजीद बढ़ सकता है। और ये दरिया सिंध का पानी है जो कि पीछे से कालाबाग से भी अभी 72 घंटों के अंदर एक रेला यहां पर पहुंचेगा और उसके बाद अभी जो है यहां पर सूरत हाल निचले दर्जे के सैलाब की है। यहां पर अभी भी तौंसा के मुकाम पर 3,54,000 क्यूसिक का रेला अभी भी गुजर रहा है जो कि मुख्तलिफ देश के तमाम इलाके इस वक्त सैलाबी सूरत हाल में हैं। ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क आप डीजी खान से हमें तफसीलात बता रहे थे, साथ ही साथ अली रियाज मुल्तान से हमें तफसीलात बता रहे थे। शुक्रिया आपका। रुख करेंगे मियांवाली का, जहां हालिया बारिशों के बाद दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जिला इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। कच्चा दराज खेल, मोच, तरीखेल, शहबाज खेल, कच्चा कमरमिशानी में सैलाब का खतरा है। इस हवाले से तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है अख्तर मजाज ने। जी अख्तर। हालिया मानसून की बारिशों की वजह से मियांवाली में जो सैलाबी सूरत हाल है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस वक्त मियांवाली में जो सूरत हाल है निचले दर्जे के सैलाब की बजाय अब दरमियाने दर्जे का जो सैलाब है उसकी सूरत हाल सामने आ रही है। मैं आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज जो तरबेला डैम से एक पानी का रेला छोड़ा गया था और जो जनाह बिराज और चश्मा बिराज पे पहुंचे और उसमें पानी की आमद में काफी हद तक इजाफा हुआ है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मियांवाली ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जितने भी दरिया सिंध के करीबी मकीन हैं उनको हिदायत कर दी गई है कि वो वहां से नकल मकानी कर लें और महफूज जगह पे वो चले जाएं। उसके अलावा कुछ जो है स्कूल जो हैं उनको मखसूस कर दिया गया है कि खुदा न खास्ता किसी भी नागहानी सूरत में वो स्कूल्स में आकर पनाह ले सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त हम मियांवाली का कच्चा यारू खैल का इलाका है यहाँ पे मौजूद है और मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो सामने नजर आने वाले ये जो दरख्त हैं और वह दरख्त से लेकर ये सारी जगह खाली थी। यहाँ पे पानी के कोई भी आसार नहीं थे। ये पानी गुज़श्ता 2 रोज में इस जगह तक पानी पहुंच गया है और ये सूरत हाल है। अगर इस तरफ बात की जाए तो यहाँ पे आबादी और ये लोगों को घर का जो रास्ता है गुजरने का रास्ता भी यहाँ से बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस तरह है कि यहाँ सूरत हाल खराब है और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब, नशेबी इलाकों के 7 देहात मुकम्मल जेर आब, फसलात दरियाबुर्द हो गईं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। इमदादी कैंप ना लगने के बायस मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मौजूद हैं। इस हवाले से हमें तफसीलात बताने के लिए ज्वाइन किया है आमिर डोगर ने। जी आमिर, इस हवाले से बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में होने वाली मूसलाधार बारिशों की वजह से मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल जो वो पैदा होगी। आज की सूरत हाल ये है कि मुजफ्फरगढ़ का इलाका जो है रंगपुर, वहाँ पर बहरामपुर में शदीद इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी जानिब दरियाए सिंध में भी पानी का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम तलीरी कैनाल पर मौजूद हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें तो तलीरी कैनाल का पानी जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि 4 लाख से जायद क्यूसिक का रेला जो है दरियाए सिंध से गुजरेगा, जिसके तहत मुजफ्फरगढ़ कैनाल, तलीरी कैनाल, डेरा गाजी खान कैनाल और इसके अलावा टीपी लिंक कैनाल को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, ताकि पानी जो है वो दूसरी जानिब जो है डाइवर्ट किया जा सके। जबकि दरियाए चनाब में सूरत हाल ये है कि मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर के करीब से बताया ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। आबिद डोगर, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोटद्दू दरिया सिंध तौसा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बेट के इलाके ज़ेर आब आ गए। जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। बेट छजड़ेवाला, बेट लूंबड़वाला, बेट निशानवाला के मुतासरीन जानवर, गंदुम समेत दीगर कीमती सामान कश्तियों के जरिए मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। तफसीलात बता रहे हैं तैमूर अतहर। होने वाली बारिशों की वजह से दरिया सिंध की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त दरिया सिंध तौसा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 3,80,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया और इसी हवाले से जो अप स्ट्रीम में जो कच्चे के इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। 8 से ज़्यादा मौज़ात हैं जिनका ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। इस वक्त भी यहाँ के जो लोग हैं नशेबी इलाकों के, वो नकल मकानी कर रहे हैं, घरों से अपना सामान जो है वो शहर की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं, मुतासरीन हैं, इनसे जानते हैं। चाचा जी, तुम मैं कुछ है पानी वध गए, तुआरे जेरे घर हैं ज़ेर आब आ चुके हैं, अपनी नकल मकानी करें पे हुकूमत की तरफों, जिला इंतजामिया तरफों कोई था इंतजामात किए गए, कोई रिलीफ कैंप, कोई तो रेस्क्यू करें पन लोग? कोई ना सही कोई नहीं थे गए। भला ढा है सारी कटाव लगी पी है, बाकी कंधा मंधा सारे जई शई ढाए गए, माल हाली कढ़ी वेने आए। भला फिलहाल आसू वाल पीछे बालन शालन घेन वे पानी वध गए तो किवें गुजारा थींदा पे? बस गुजारा करें दे पह किवें करूं, कंधे मंधे से टुको टेरा पका के खड़े मड़े राख कराई, मकान शकान कच्चे आन ढाए गए, बस गुजारा करें दे पह क्या करूं। कितने इलाके हैं जेरे ज़ेर आब आ चुके हैं? ये 3 इलाके हैं, एक छजड़े वाला है, निशान वाला है, लोंबड़ वाला है। कटाओ एडू दरिया दा वो परेशान कीते पे। केरा सामान है जरा कढ़ी दे? ये तो सिर्फ माल कट्ठी वेने हैं, बाकी तुसा मैं कुछ है क्या मुश्किलात हैं था? मुतासरीन बेयार और मददगार हैं। तैमूर अतहर, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करेंगे लिया से, जहां लिया में दरिया सिंध में तोगयानी, कोट सुल्तान के मौजा, खोखरवाला, शाहवाला के मुकाम पर फसलों में सैलाबी पानी दाखिल, जबकि घर भी पानी में डूबने लगे हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जाहिद सरफराज। हाँ जी बिल्कुल, लिया और गिरदोनवाह के अंदर मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद दरिया सिंध के अंदर भी पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है, जिसके बाद जो शहरी हैं यहाँ पर जो मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मौजूद हूँ कोट सुल्तान के नशेबी इलाका शाहवाला के मकाम पर, जहाँ पर जो आर्जी बंद बांधा गया था दरिया सिंध के नुकसानात को रोकने के वजह से, वो बंद जो है रात गया टूट गया, जिसके बाद यहाँ पर जो मकीन है उनके जो काफी सारे हजारों की तादाद में जो एकड़ फसलात थी वो इस ज़ेर आब आ चुकी है। यहाँ पर कुछ मकीन मौजूद उनसे बात करते हैं। भैया दसे सो कितना फसलात बुढ़न पर? इतना करोड़ों रुपए के हिसाब से फसलात बुढ़े ने इंदे विच जड़ा बन बदा गया है, उन्दे राती बंदे जागते रह गए, लेकिन हवा दी नाल छोली छोली नाल वो सारा बन त्रुट गए, जिंदे बावजूद सारा पानी आ गए और करोड़ों रुपए के फसलात हैं, घास आन, तिल चावल सारे अपना बुढ़ गए। ये दसे सो कोई इंतजामी तरफों कोई बंदा तो इमदाद को आया? कोई नहीं, हाली तक कोई नहीं आया। असं में खड़े हैं, हाली तक कोई बंदा ही इंतजामिया की तरफों या नहीं किया इमदाद की, कोई बंदा ही नहीं आया। जी बिल्कुल, ये लोग जो है गिला करते नजर आते हैं कि उनके नुकसान, घर और फसलें पानी में डूबने लगे हैं। जाहिद सरफराज, आप लिया से तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर हेड पंजनत के मुकाम पर दरिया चनाब में 1,12,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। नशेबी इलाकों में सैलाब के खतरात बढ़ गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं राना इमरान सईदी। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड पंजनत के मकाम पर और यहाँ जो है दरिया चनाब में इस वक्त 1,00,000
اور 12,000 क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से जो है एक वार्न दी गई है कि भी जो दरियाए चनाब के साथ नज़दीकी जो नशेबी इलाके हैं वहाँ से जो है लोग वो नकल मकानी कर जाएं। यहाँ जो निचले दर्जे का जो सैलाब है वो आने का इस वक्त जो है खदशा बढ़ चुका है। जिन इलाकों में जो है दरियाए चनाब का जो पानी है वो सैलाब का खतरा ला सकता है, उनमें जो है मक्खन बेला, मौजा बख्तियारी, अजमतपुर, इसके अलावा सीदपुर, खानगार, दोयमा, सरकियां, ये सैलाब का खतरा बढ़ गया है। राना इमरान सईदी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीडीएमए की जानिब से फ्लड वार्निंग जारी होने पर डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा ने मुतल्लिका महकमों की छुट्टियां मनसूख कर दी। डीसी भक्कर ने मुमकिना मुतासिर होने वाले इलाकों में 16 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। मजीद बता रहे हैं भक्कर से उसामा हैदर। जी उसामा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा पीडीएमए की जानिब से दरिया सिंध के किनारे आबाद अजला के लिए फ्लड वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। दरिया सिंध में भक्कर के मकाम पर इस वक्त 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर हमारे साथ मौजूद हैं। मूसा रजा साहब से हम जानेंगे कि सर फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या रिलीफ के स्टेप्स लिए इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया इस वक्त इंडस जो है भक्कर में वो मीडियम फ्लड में है, 330 है, और अभी जो हमारा जनाब राज पे है वो 4,16,000 का है डाउन स्ट्रीम। तो आने वाले दिनों में हम मीडियम कर रहे हैं एक्सपेक्ट, और फिर खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा फ्लड बनता है, उसका पानी फ्लो ज़्यादा होता है तो फिर ये हाई पे जाएगा। अकॉर्डिंगली हमने जो अपने एसाइबान है, जो हमारे रेवेन्यू की डिपार्टमेंट है, उसके 1122 एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, इन सारों को अलर्ट कर दिया है, और हमारे रिलीफ कैंप भी अभी तैयार हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन बनती है तो वी आर रेडी टू कोप विद दैट। सर, जो बंद के अंदर वाली आबादियां हैं, क्या उन्हें वहां से उनका इनखला जारी है पानी के आने से जी? पहले? उसमें हाँ जी, उसमें बिल्कुल अभी जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वी आर कीपिंग एन आई ऑन द फ्लो जी। मीडियम में हमारे पास कोई ऐसा मौजा नहीं है जो इफेक्ट होता है। जब हम हाई फ्लड में जाते हैं 5.5 से, उस वक्त हमारे मौजे इफेक्ट होने शुरू होते हैं। तो जो ही ये हाई फ्लड पे जाएगा तो वी डेफिनेटली इवैक्यूएट देम। अभी उन्हें कोई खतरा नहीं है। जी बिल्कुल, आपने जाना कि डिप्टी कमिश्नर भक्कर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। उसामा हैदर आप हमें भक्कर से तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सिंध में जिना बैराज और चश्मा बैराज के मकामात पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया सिंध में जिना बैराज पर पानी की आमद 3,96,880 क्यूसेक और इखराज 3,96,880 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 3,57,202 क्यूसेक, जबकि पानी का इखराज 3,55,202 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, तमाम झीलें पानी से भर गईं। कच्चा गुजरात, कच्चा कालू, अलुवाली, ठंगाना, दोआबा के नशेबी इलाके दरियाई कटाव से मुतासिर। साहिली इलाकों के रिहायशियों को फ्लड अलर्ट जारी। इंतजामिया ने करीबी आबादियों के रिहायशियों को महफूज मकाम पर नकल मकानी करने की हिदायत कर दी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में हालिया बारिशों के हवाले से रेस्क्यू 1122 ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं माहिर इमरान। बारिशों का एक जो सीजन है वो शुरू है, और इस हवाले से मुल्तान और गिरद नवाब में जो तेज बारिश से हादसात भी रूनमा जो है हो रहे हैं। जो रेस्क्यू 1122 की क्या एक्टिविटी है, अब तक इन वाकयात से निपटने के लिए क्या इकदाम किए जा चुके हैं और आगे की क्या तैयारियां हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कलीमुल्लाह साहब, सर बताइएगा, डॉक्टर साहब क्या इकदाम किए जा रहे हैं। बारिशें तेज हो रही हैं और हमारे शहर में जो कुछ घर ऐसे भी हैं जो मखदूश हालत में है, क्या देखें, जब मुसलसल बारिशें शुरू होती हैं तो उस वक्त अर्बन फ्लडिंग के खतरे के साथ साथ एक सबसे बड़ा मसला जो बिग सिटीज़ में होता है, जहां अंदरून के एरियाज़ हैं, कि वहां पुरानी बिल्डिंग्स हैं और वहां बिल्डिंग्स गिरने के वाकयात रूनुमा होते हैं। अब तक हम लोग कोई 4 बिल्डिंग कोलैप्स की इमरजेंसी डील कर चुके हैं, जिनमें ज़ाहिर है हमारी पॉपुलेशन का साइज़ भी आपको पता है ज़्यादा है, और छोटे छोटे घर हैं, ज़्यादा लोग छोटे मकानों में रह रहे होते हैं, तो हर एक इमरजेंसी में कहीं 8 कहीं 10 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। ऐसी हालत में एज ए एमरजेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमारी जिम्मेदारी फौरी रिस्पांस करना है, उन लोगों की इवैक्यूएशन करना है, हेल्प करना है। बाकी तमाम मुतलका इदारे जो है वो टाइम से पहले भी ज़ाहिर नोटिफिकेशन भी कर चुके हैं और अपने अपने मामलात वो बेहतर तौर पर जानते हैं। इन हालात में शहरियों को क्या मैसेज? शहरियों के लिए मैसेज ये है, पहली बात तो ये है कि देखें जिस जगह पर आप स्टे कर रहे हैं, रह रहे हैं, एटलीस्ट वहाँ नज़र मार लें कि क्या ये जगह रिहाइश के काबिल है, क्या ये जगह सेफ है, जिस छत के नीचे आप बैठे हुए हैं क्या वो गिर तो नहीं जाएगी बारिश की वजह से, या उसकी दीवारें कमज़ोर तो नहीं हैं।
جان سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا، بارش کے دنوں میں الیکٹریکیوشن کے واقعات بڑھ جاتے ہیں. بجلی کا کرنٹ لگنے کی وجہ سے ایمرجنسیز ہمارے پاس بڑھ جاتی ہیں, روڈ کے اوپر حادثات بڑھ جاتے ہیں. ایسی حالات میں میں تمام شہریوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. بارش جب ہو رہی ہو اسپیشلی اس وقت ٹریولنگ کرنے سے اوائڈ کریں. بجلی کی ننگی تاروں کے قریب سے بھی مت گزریں, کھمبوں کے قریب سے مت گزریں, اور بچوں کا اسپیشلی بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ ان بارشوں کے دنوں میں کم سے کم نقصان ہمیں ہو. بالکل یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ ریسکیو 1122 کی جانب سے شہریوں کو بتائی جا رہی ہیں. ریسکیو 1122 نے الرٹ جاری کر دیا. عمران, آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. کریں بہاولپور میں سفری سہولیات ہوں گی مزید آسان. بہاولپور کو کراچی موٹر وے سے منسلک کیا جائے گا. جھانگڑا شرقی سے بہاولپور تک 67 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 رویہ روڈ بنے گی. روڈ کی تعمیر سے عوام کراچی موٹر وے سے ڈائریکٹ منسلک ہو سکیں گے. 40 کلومیٹر لمبی 2 رویہ روڈ بنانے کی سمری وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. بہاولپور میں سفری سہولیات ہوں گی مزید آسان. بہاولپور کو کراچی موٹر وے سے منسلک کیا جائے گا. جھانگڑا شرقی سے بہاولپور تک 67 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 رویہ روڈ تعمیر کی جائے گی. ملتان میں ممبر صوبائی اسمبلی حاجی جاوید انصاری کے ڈیرے کے باہر نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کرنے کا معاملہ. سی پی او ملتان کے حکم پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ, اقدام قتل اور گھر میں نقصان پہنچانے اور خوف و ہراس کی دفعات شامل. مقدمے میں 8 ملزمان نامزد ہیں, جن میں آصف عرف اچھا ڈان, سجاد عرف یادی, ناصر, امجد عرف بھولا, شاہد, جنید اور سلمان پر بھی مقدمہ درج کیا گیا. ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل, پولیس کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری. تو آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں ممبر صوبائی اسمبلی حاجی جاوید انصاری کے ڈیرے کے باہر نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کرنے کا یہ معاملہ ہے. ملتان میں ممبر صوبائی اسمبلی حاجی جاوید انصاری کے ڈیرے کے باہر نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کرنے کا معاملہ. سٹی صدر تحریک انصاف عدنان ڈوگر, صدر تنظیم تاجران پاکستان خواجہ سلیمان صدیقی کی جاوید اختر انصاری کی رہائش گاہ آمد, حال احوال جانا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھی جاوید اختر انصاری کو فون, خیریت دریافت کی. اسی حوالے سے تفصیلات بتانے کے لیے جوائن کیا ہمیں جنید انور نے. جی جنید, کیا معاملہ ہے یہ؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید اختر انصاری کے ڈیرے پر جو ہے وہ کل فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. خوش قسمتی سے جاوید اختر انصاری اس کے اندر محفوظ رہے کیونکہ وہ گھر کے دوسرے حصے میں موجود تھے. اس وقت ہم اسی ڈیرے پر موجود ہیں جہاں پر کل جو ہے وہ فائرنگ کا واقعہ آیا سامنے آیا. اگر میرے کیمرہ مین مجاہد سلطان دکھا سکیں تو یہ وہ مرکزی جو داخلی دروازہ ہے جہاں سے جو ہے حملہ آور داخل ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے شیڈ کے اوپر جو ہے وہ فائر کی, جس کے نشان جو ہے تاحال ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے. پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچی, سی پی او ملتان بھی پہنچے, اور ملتان کی سیاسی و سماجی شخصیات بھی پہنچی اور جاوید اختر انصاری سے اظہار یکجہتی کیا. اس وقت جاوید اختر انصاری ہمارے ساتھ موجود, ان سے بات بھی کریں گے. سب کس طرح دیکھتے ہیں کہ کل کے واقعے کو, اور خاص طور پر انتظامیہ بھی حرکت میں آئی, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری اور میرے بچوں کی جان بخشی, اور میں اپنے دوستوں کا تمام دوستوں کا جنہوں نے اظہار ہمدردی کے لیے رات ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرے پاس آئے اور مجھے کہا یہ سب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انتظامیہ کو جب فون کیا, انتظامیہ بھی رات ساری موقع کے اوپر آ گئی تھی, مگر یہ لوگ جو ہیں میں یہ کہوں گا ناسور ہے معاشرے کے اندر. ان لوگوں کے اوپر آپریشن میرے اس حلقے میں ہونا چاہیے. یہ اپنا انصار کلونی ہے, شریف پورہ ہے, مومن آباد ہے, شہین آباد ہے. ان لوگوں نے, ان بدماشوں نے یہ قلعہ بنا رکھا ہے, ادھر اس علاقے کو ہراساں کر رکھا ہے. شریف آدمی ان کے سامنے بول نہیں سکتا جو ان لوگوں نے بدماشی کی ہوئی ہے. میں بالکل الحمدللہ ان کا آپریشن میں سی پی او سے کر کے انشاءاللہ آپریشن کا آپریشن ہونا چاہیے کہ یہ اتنا ان کے پاس اسلحہ نجائز ہے. نمبر 2 ہے جو نوجوان نسل ہے یہ ان کو بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ ان کو لگا رکھا ہے انہوں نے. اچھا, جس میں حملہ ہوا اس وقت گھر کے کون سے حصے میں موجود تھے اور آپ کو کیسے اطلاع ملی؟ انہوں نے آتے ہی فائرنگ کی ہے, بہت فائرنگ کی ہے انہوں نے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ کل موسم بارش کا تھا تو میں اندر بیٹھ گیا, نہیں تو آپ کو پتا ہے میں بیٹھا ہوتا ہوں باہر, تو بس وہ اللہ نے جان بخشی ہے میری. آپ کو ڈرانا مقصود تھا یا آپ کو ٹارگٹ؟ نہیں, ٹارگٹ ڈرانے والا کوئی نہیں ہے. ان کا ایک ٹارگٹ تھا حاجی جاوید
क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले मेरे दोस्त के ऊपर हमला किया, उसको मारा पीटा उनको, और उसके साथ उन्होंने कहा कि एमपीए को बुलाओ तो हम वो आपको छड़ा ले। वो दहशतगर्द की अलामत बन चुके हैं इस इलाके में। मगर मैं इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे कि इंतजामिया के साथ मिलके इनका खात्मा जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल मुशीर वज़ीर पंजाब जावेद फायरिंग का वाकया पेश आया। वजीर खारजा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खैरियत दरियाफ्त की। जुनेद अनवर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब भर के सरकारी स्कूल 15 सितंबर को खोलने से पहले स्कूल हेड्स को मुश्किल में डाल दिया। स्कूलों को खोलने से पहले इजाफी नॉन सैलरी बजट और फंड्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जनूबी पंजाब भर के स्कूलों को पिछले साल के 2 और रवां माली साल की पहली किस्त अदा नहीं की। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम मुतवक्के है कि 15 सितंबर को पंजाब भर के जो सरकारी स्कूल्स होंगे वो ओपन किए जाएंगे। लेकिन 15 सितंबर को जब स्कूल ओपन किए जाएंगे उससे कबल स्कूल हेड्स जो जनूबी पंजाब भर के अजला के हैं उनके लिए एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से माली साल की जो पिछले साल की 2 किस्तें हैं और रवां साल की जो पहली किस्त है, ताहाल पंजाब भर जनूबी पंजाब भर के अजला के जो सरकारी स्कूल के जो हेड्स हैं उनको ताहाल नहीं दी गई, क्योंकि कोरोना एसओपीज पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी होगा, जिसमें सैनिटाइजर, इसके साथ साथ मास्क, फेस मास्क समेत दीगर जो एहतियाती तदाबीर होंगी। स्कूल मुश्किल में पड़ गए हैं। आमिर भट्टी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां महकमा तालीम की स्कूलों को खोलने के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि 15 सितंबर से बाकायदा तौर पे तमाम तालीमी अदारे खोल दिए जाएंगे और इसके हवाले से तमाम सीओज एजुकेशन जो है उनको बाकायदा तौर पे हदायत जारी कर दी गई है कि अपने तौर पर इंतजामात जो है वो शुरू कर दिए जाएं ताकि स्कूलों के अंदर बच्चों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस हवाले से तमाम जो सीओ एजुकेशन हैं उनसे तजावीज़ भी मांगी गई हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं बहावलपुर की तो बहावलपुर से हर क्लास के अंदर तकरीबन 26 स्टूडेंट बिठाने की जो पॉलिसी है वो तैयार की गई है और किस दिन कितने तलबा आएंगे और कितने तलबा नहीं आएंगे, इन तमाम के हवाले से भी ये तमाम तर चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक किसी चीज़ की मंजूरी नहीं दी गई, सिर्फ तजावीज़ मांगी जा रही है और हतमी फैसला जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 7 सितंबर को किया जाएगा और उसके बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो वादे की गई है कि स्कूलों को खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे सरगोदा का, जहां महकमा ड्रेनेज ने कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। सरगोदा में भल सफाई शुरू नहीं हो सकी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह। जी बिल्कुल, सरगोदा सर्कल की बात की जाए तो यहाँ पर भल सफाई ना होने से मेन ड्रेनेज में सेम का जो पानी है, सेम नालों का पानी है, वो मसवाती इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस हवाले से देखा गया कि चंद रोज कबल सरगोदा की कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद की जानिब से ड्रेनेज अफसरान की सरजनिश की गई थी और उन्हें यह हिदायत जारी की गई थी कि जल्द अज जल्द मसवाती इलाकों में ड्रेनेज की सफाई का अमल मुकम्मल किया जाए, भल सफाई करवाई जाए। ताहाल जो है तमाम अफसरान की जानिब से कमिश्नर सरगोदा के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया और ताहाल भल सफाई का अमल शुरू नहीं हो सका। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो पुरानी पाइप्स लाइन है जहां पर सेम नाले गुजरे हैं वहां पर पानी ओवरफ्लो कर रहा है, बारिशों का सिलसिला भी जारी है और पानी ओवरफ्लो करने से जो करीबी इलाके हैं वहां पर जो फसलें हैं उनको भी नुकसान। भल सफाई शुरू नहीं की जा सकी। फसीउल्लाह ब्यूरो चीफ आप हमें तफसीलात बता रहे थे सरगोदा से, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर के मुतादिद इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अमीन। अहमदपुर रोड पर सब्जी मंडी के बिल्कुल बिलमुकाबिल जो है ये इलाका मकीनों का जो है जीना महाल हो चुका है। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर बारिश का पानी जमा हो जाता है और निकासी का इंतजाम ना होने के बाद एक हफ्ता जो है यहाँ पर पानी खुश्क नहीं होता, जिसके बाद ना सिर्फ जो कारोबार जिंदगी है बुरी तरह मुतासर होता है बल्कि यहाँ से पैदल गुजरना भी जो है सलाहुद्दीन कॉलोनी से आगे रोड की तरफ गुजरना भी महाल हो जाता है। इलाका में जो मौजूद उनसे बात करते हैं। अच्छा दसाओ कितने जो मसले है क्यों हल नहीं थींदा पिया? इसी काफी अरसे का मसला है, ना गटर लैन है, ना घर की सीवरेज का पानी का लैन है, ना ही रोड की लैन है। एक खड़ा पानी में खड़दा ही रहा, दुकानदार जिमें काम कार करे अपने वो सारा पानी जहर तले छुड़े अंदर कोई निकासी क्या नहीं छोड़न दी, तले छोड़ देने वधा रहा रोड मंडी सारा तोड़ ताकि में कबाड़ ही कबाड़ पानी का नजर दे। कोई सफाई क्या नहीं, सफाई अमला जो अपना जरा मोटा मोटा काम करें चला वे
बकाया गटर लैन वाले उन्होंने मुताबिक कोई अमला नहीं आता, कोई चेक नहीं करेंदा, कोई नहीं देता। ये गटर लैन शुरू दी में बांधे बांधे बांधी वेंदी पई है। कितनी मुश्किलात थी, नहीं तो गुजरने पानी नहीं निकाला जा सका। मोहम्मद अमीन आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में मार्केट कमेटी और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली मॉडल सब्जी मंडी गंदगी और ताफून की अमाजगाह बन गई है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अथल आशारी। जी बिल्कुल, ऐसे कि बहावलपुर की मॉडल सब्जी मंडी की बात करें तो यहाँ पर बारिश को रुके हुए 24 घंटे से जायद का अरसा गुजर गया है। कल का दिन पूरा बारिश नहीं हुई और आज भी बहावलपुर की मंडी में जगह जगह कीचड़ और बदबूदार पानी जो है वो मौजूद है और उसी पानी में सब्जियां और फल जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो वेस्ट मैनेजमेंट के यहाँ पर सुपरवाइजर हैं उनसे बात करते हैं। कल भी बारिश नहीं हुई, आज भी बारिश नहीं है, कीचड़ मौजूद है, गंदगी मौजूद है, आप वेस्ट मैनेजमेंट क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, वेस्ट में जो काम कर रहे हैं कि कल बारिश जो रही है उसके बाद कुछ कंट्रोल हुआ है, इससे डबल कूड़ा था जो हम लोगों ने वेस्ट को कंट्रोल किया है। मजीद हमारी मशीनरी आ रही है और हम लोग हमारे वर्कर भी लगे हुए हैं इंशाल्लाह। इतनी छोटी सी जगह है, ये भी साफ नहीं हो सकती 24 घंटे? सर छोटी जगह है, यहाँ पे जो शॉप्स कीपर हैं आते ये लोग हमसे ताउन नहीं करते। इन्हें हम बार बार कहते हैं कि अपनी शॉप्स को अंदर करें, हमें जगह दें, ये लोग हमें जगह नहीं देते। इनके ना ताउन करने की वजह से थोड़ा सा ये वेस्ट ज्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी आज मार्केट कमेटी ताउन नहीं कर रही? नहीं, वो भी करते हैं, आते हैं, वो हमारे साथ विजिट करते हैं, वो आके कह के जाते हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने हटते हैं फिर ये वापस आ जाते हैं। सामने तो कोई मॉडल सब्जी मंडी गंदगी और ताफून की अमाजगाह बन गई है। अथल आशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता 2 रोज से होने वाली बारिश से नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी की बाउंड्री गिर गई है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद मकसूद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज से मुसलसल बारिश होने की वजह से मुल्तान नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी की जो दीवार है वो गिर गई है, जिसको करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था और इस दीवार के गिरने के बाद जो यहाँ के इलाका मकीन है उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। हम उनसे ही जानेंगे। सर बताइएगा, करोड़ रुपए की लागत से ये बनाई गई थी और ये गिर गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से और कितनी परेशानी का सामना है? ये जी हमारा यहाँ से रोज गुजर होता था और यहाँ पे इसकी हालत ऐसी थी, शुरू से इन्होंने नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया। हम आते जाते इन लोगों को कहा करते थे कि यार ये कैसा मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, इसको दीवार को सेट करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। हमने यहाँ तक कि यहाँ के जो वीसी का जो असिस्टेंट है उनके पास भी गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे सारे दरख्त लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये सारे यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं और यहाँ पे लोग स्टूडेंट यहाँ बैठते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, तालीम वो करते हैं। यानी मतलब है कि दरख्त तो एक नेमत होती है और इमरान खान का ये विजन है कि हमने ये दरख्त अरबों दरख्त लगाने हैं और ये दरख्तों को काटे जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। देखिए ना, दीवार ने सारा नुकसान। ये बताइएगा क्या नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी की दीवार गिर गई है। मोहम्मद मकसूद आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उट शरीफ से जहां आवारा कुत्तों की भरमार है, आवारा कुत्तों के कांटे से 8 साल बच्ची अरीबा जाँ बहक। आवारा कुत्तों के कांटे के मुतादिद वाकयात हो चुके, जिसमें मुतादिद बच्चे जाँ बहक भी हुए। मुतादिद हलाकतों के बावजूद इंतजामिया पर जूं तक नहीं रेंगी। वर्षा और अहले इलाका का आवारा कुत्तों को तल्फ करने का मुतालबा। तो आपको बता रहे हैं उट शरीफ में आवारा कुत्तों की भरमार, आवारा कुत्तों के कांटे से 8 साल बच्ची अरीबा जाँ बहक। आवारा कुत्तों के कांटे के मुतादिद वाकयात हो चुके हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रूही सज्जाद हुसैन ने। जी सज्जाद, तफसीलात बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ उस शरीफ के नवाई इलाका खैरपुर डा बस्ती ओठा वाली में, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है कि एक मासूम बच्ची 8 साल जो अरीबा यहाँ पर खेल कूद रही थी खेतों में, उसे आवारा कुत्तों ने काटा, जिसकी वजह से वो अस्पताल पहुँचने से पहले जाँ बहक हो चुकी है। हम इस वक्त उसके वर्षा के साथ मौजूद हैं, उसके वालिद अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये दसो कि ये वाक़या किमें पेश है, बच्ची थोड़ी कुत्ते ने कट्टे, क्या है, क्या वक़ूअत है? बारिश है उन्होंने पढ़न मदरसे पढ़ती नहीं गई, मदरसे नहीं गया, वो थे खेत दे वजन बाले नाल वो घरों जो बाहर निकचे खेत गई है, यानी कि कपास जो गई उथा उन्हें कुत्ते अकेली आ गई, उन्हें कुत्ते न थे, उन्हें कुत्ते पट गए। वाल तो चाहते अस बने फौरी तौर हस्पताल सरकारी, उथा उन्हें कई इलाज नहीं किया, उन्हें आगे सीधा वजो बहावलपुर। जब बहावलपुर पहुंचे हैं तो वो पहले बहावलपुर को पहुंचाने को पहले अल्लाह को प्यारी थी गई। तो हुकूमत को दरख्वास्त है सारी जो को जरा सरकारी हस्पताल वाले को कंट्रोल करन, भाई कोई ना वैक्सीन लेने का मेरी बच्ची की शायद हयाती बच वेंदी, तो उन्हें कुछ नहीं किया। सा कोई बिल्कुल बच्ची को थोड़ा जहा भी उन्हें नहीं कर सके, उन्हें को टीका भी नहीं ला सके जो भाई ताकती कोई टीका लाऊं, वैक्सीन लाऊं, जा ड्रिप थोड़ा ला जोड़ूं, भाई बच्ची दे खून नोच गए वेंजे तक भाई कुछ को हौसला थी वञे। ॿिया अल्लाह से घिनण वाला तो मेरा अल्लाह है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ इलाका मकीनों ने आवारा कुत्तों को तल्फ करने का मुतालबा किया है। सज्जाद हुसैन आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में सेशन 2020-21 के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा रोही सुहेरा तारिक। खवातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से सेशन 2020-21 के दाखिलों का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है और उसके साथ साथ मेरिट लिस्ट का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। खवातीन यूनिवर्सिटी में BS, MS, MPhil और PhD प्रोग्राम्स के दाखिले जो हैं वो जारी हैं, जिसका एंट्री टेस्ट जो है वो 9 सितंबर से 14 सितंबर तक मुनक्किद होंगे एंट्री टेस्ट, जबकि पहली मेरिट लिस्ट जो है वो 15 सितंबर को आवेज़ा की जाएगी, दूसरी मेरिट लिस्ट 18 सितंबर को आवेज़ा की जाएगी, जबकि तीसरी और आखिरी मेरिट लिस्ट जो है वो 25 सितंबर को जारी की जाएगी। खवातीन यूनिवर्सिटी में साल 2020-21 के लिए जो दाखिले हैं वो ऑनलाइन जारी हैं। वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर तमाम तर मालूमात जो हैं वो मौजूद हैं। विमेन यूनिवर्सिटी में दाखिले जारी हैं। सुहेरा तारिक, आप तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स में इत्तेहाद ग्रुप जीत के हवाले से पुरअज़्म है। इत्तेहाद ग्रुप की हिमायत में आज़ाद उम्मीदवार चौधरी नबील शाकिर ने कागजात नामजदगी वापस लेकर दस्तबरदार हो गए हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं महमूद जहीर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन का बगल क्या बच चुका है, बल्कि अब तो सर पर आ गए। 19 सितंबर को इलेक्शन है, 12 एग्जीक्यूटिव नशस्तों पर इस हवाले से इलेक्शन होंगे। सदर चौधरी जावेद इकबाल साहब और उनके अलावा दीगर जो मेंबरान या साथी दोस्त लीडर हैं वो सब तमाम के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस ग्रुप को जो कि इत्तेहाद ग्रुप के नाम से सामने आया है, लीड कर रहे हैं चौधरी मुबशर हुसैन साहब। मेरा साथ दीजिएगा जरा। मुबशर भाई, कितना हद तक देख रहे हैं कि आपका ग्रुप जिसकी लीड कर रहे हैं तारिक बशीर चीमा साहब, आप लोग इस इलेक्शन में मैदान मारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन आ गया 2020-2021 का। इत्तेहाद ग्रुप के नाम से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। 6 सीटें इसकी एसोसिएट की हैं, 6 कारपोरेट की हैं और 1 लेडी सीट है। अल्लाह ताला खैरियत करेंगे। जैसा हमारी मेहनत चल रही है, हमारे ग्रुप को हमारे दोस्त सारे मिल कंप्लीट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। जिस तरह आज नबील शाकिर साहब ने मेहरबानी की है, इन्होंने कागज़ जमा करवाए थे, आज उन्होंने मेहरबानी करके इत्तेहाद ग्रुप में अपने कागज़ वापस ले रहे हैं। ये मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हम 6 कारपोरेट की, 6 एसोसिएट की और 1 लेडी सीट जो है 13 के 13 सीटें विन करेंगे और वाज़ेह एक्सपीरियंस से विन करेंगे इंशाल्लाह। वाज़ेह एक्सपीरियंस से विन करने के बाद अपना सदर बनाएंगे। नबील साहब, मैं आपका साथ लेना चाहूंगा। आप अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, आज वापस ले रहे हैं, क्यों? जी, मैंने अपने कागजात नामजदगी आज़ाद हैसियत से जमा करवाए थे और इत्तेहाद ग्रुप को सपोर्ट करते हुए अपने कागजात मैं उनके फेवर में वापसी ले रहा हूँ। क्या इसमें कोई आप मुतासिर हैं तारिक बशीर चीमा साहब? जी, मैं चीमा साहब की शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और उनके ग्रुप को सपोर्ट करते हुए उन्हीं की फेवर में मैंने कागजात वापसी लिए। जी बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बहावलपुर में तारिक बशीर चीमा साहब इत्तेहाद ग्रुप के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। महमूद जहीर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में हल्का बंदियों और तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मलिक मोहम्मद रमजान ने हल्का बंदियों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर की तरक्याती मंसूबों में म्यारी मटीरियल के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत, गैर म्यारी मटीरियल साबित होने पर मुतल्लिका महकमे के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। इजलास में नए तरक्याती मंसूबों बारे भी ब्रीफिंग में बताया गया कि डेरा गाजी खान में 1231 मंसूबों पर 40 अरब 36 करोड़ 80 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम की 194 जारी स्कीमों पर 35 अरब 56 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। इजलास में कमांडेंट BMP हमजा सालेक, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली बहावलपुर पहुंच गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अथल आशारी। बिल्कुल ऐसी है कि जो वादा था साउथ पंजाब का प्रोविंस के हवाले से और सेक्रेटेरिएट के हवाले से चीज़ें जो हैं वो अब अमली तौर पर भी नज़र आना शुरू हो गई हैं और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब साकिब अली अतील आज यहाँ पर बहावलपुर पहुंचे और मुख्तलिफ महकमों के जो सरबराहान हैं एग्रीकल्चर के उनसे आज मुलाकात कर रहे हैं। सर, एक तो आपको खुशामदीद कहते हैं बहावलपुर में, जनूब पंजाब में, क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं एग्रीकल्चर को, कितना पोटेंशियल है, किस तरह से आगे लेकर चलने का प्लान है? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हमारा साउथ पंजाब तो मेन हब है और कॉटन का और बाकी फसलों का, और एग्रीकल्चर वैसे भी हमारे मुल्क की बैकबोन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे काम करने का स्कोप है, यहाँ पे लोगों को पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। और जैसे गवर्नमेंट का यहाँ पे इस साउथ पंजाब को बनाने का मेन आइडिया है कि लोगों के मसाइल जो है उनके घरों पे हल हो, उनकी दहलीज पे हल हो।
तो इंशाल्लाह अभी सुबह हमने दूसरी मीटिंग हम कर रहे हैं, पहले और लोगों से भी की है, जो मुतलका पेस्टिसाइड डीलर से हुई है, उनके जो कंपनीज से। इसी तरह अब हम अपने ऑफिस की कर रहे हैं, तो करते आप लोगों के साथ भी अभी इंटरेक्ट हो रहा है। तो होपफुली हम यहाँ पे पूरा जोर लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे और जो गवर्नमेंट्स के जो भी टास्क है, जो भी टारगेट्स हैं, इंशाल्लाह उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। साकिब अली अकील बहावलपुर पहुंच गए हैं। अथल आशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में इन सर्विस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की बामकसद शजरकारी से फायदा उठाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। मुल्क की जरूरत है, मगर अगर बामकसद शजरकारी कर दी जाए तो इसका फायदा भी उठाया जा सकता है। इन सर्विस एग्रीकल्चर लैंड इंस्टीट्यूट रहीम यार खान ने इस तरह की एक मिसाल कायम की है। मोरिंगा एक पौधा है जिसे उर्फे आम स्वांजना कहते हैं, वो लगाए। अब इस पौधे की फसल हासिल करके इस पौधे से मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाई जा रही हैं, जो इंसानों की, जानवरों की ग़िज़ाई किल्लत को भी पूरा करेगी और इसके अलावा फसल की बेहतरी पैदावार के हवाले से भी ये प्रोडक्ट बनाई जा रही हैं। डायरेक्टर इन सर्विस एग्रीकल्चर लैंड चौधरी इम्तियाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, स्वांजने की बहुत ज़्यादा अहमियत बताई जा रही है, आपने पौधे लगाए, कितने पौधे लगाए, अब उससे कौन कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आवाम को भी दे रहे हैं, और किस तरह के किसानों को इससे मोटिवेशन किया जा रहा है कोई इस तरह की चीज़ों को काश्त करे जिससे वो अपना फ़ायदा भी उठा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वांजना रुफ़ा में इसको कहते हैं, मोरिंगा इसका इंग्लिश नाम है। तो ये एक ऐसा करिश्माती पौधा है जिसके अंदर ग़िज़ाई अनासर बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है। तो जैसे ग्रीन पाकिस्तान मुहिम हम चल रही है शजरकारी में, तो इसको अगर हम दूसरे पौधे लगाने के बजाय ये पौधा लगा लें तो ये एक बामकसद शजरकारी भी हो जाएगी इंसानों की सेहत के लिए और जानवरों के सेहत के लिए जो इसका इस्तेमाल है वो हो सकता है, और इसके ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जिससे जिम्मेदार जो है वो उससे इजाफी आमदनी भी कमा सकता है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाए आपके इंस्टीट्यूट में? हमारे इंस्टीट्यूट कर दिया है ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी खान चिड़ियाघर में शहरियों को देखने को मिलेंगे अब नए जानवर। डीजी खान चिड़ियाघर के लिए नए जानवरों की मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं आशिर अशफाक। डीजी खान के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है। डीजी खान के चिड़ियाघर में नए जानवर जो है अब शहरियों को देखने को मिलेंगे। चिड़ियाघर में नए जानवरों की अप्रूवल डीजी वाइल्ड लाइफ की जानिब से कर दी गई है और आने वाले चंद दिनों में नए जानवर डीजी खान के चिड़ियाघर में पहुंचा दिए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। नवी साहब, बताइएगा कौन कौन से नए जानवर डीजी खान में लाए जाएंगे और डीजी खान के लोगों के लिए क्या खुशखबरी है? जी, हमारे पास ये ऑर्डर हो गए। एक पेयर जेब्रा है और पेयर लायन है और ट्रायो चिनकारा है, जो कि पहले यहाँ पे नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये शिफ्ट हो जाएंगे बहुत जल्द और इसकी रौनक मजीद बढ़ जाएगी और लोगों के लिए ये बड़ी अट्रैक्शन होगी। खासकर जेब्रा बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगी शहरियों के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर डीजी की जानिब से खसूसी तौर के ऊपर नए जानवरों की मंजूरी दे दी गई है। आशिर अशफाक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दुनियापुर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर गुर्बत मुकाव मुहिम के तहत दुनियापुर सिविल वेटरनरी अस्पताल में मुर्गियां तकसीम की जा रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं याकूब ताहिर। मैं इस वक्त दुनियापुर सिविल वेटनरी अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो है आम आदमी को रोज़गार मुहैया करने के लिए मुर्ग पाल स्कीम के तहत यहाँ पर आज यूनिट की तकसीम की गई। इस वक्त जो है मैं सिविल अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर करामत अली साहब के पास मौजूद हूँ। मज़ीद इन्हीं से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। आज वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक ज़राई खुशहाली का जो प्रोग्राम है उनका, उसके तहत सिविल वेटरनरी अस्पताल में दही मुर्गबानी के फ़रोग़ के लिए मुर्गियां तकसीम की जा रही हैं। ये मुर्गियां रहती कीमत पर 1050 रुपये में यूनिट तकसीम किया जा रहा है ताकि लोग घरों में अपना छोटे दर्जे का रोज़गार भी शुरू कर सकें और इससे अंडे अपने बच्चों को प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये मुर्गियां मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हैं। इसके अलावा इनके साथ हम फ्री मेडिसिन दे रहे हैं और इनको मुफ्त रानीखेत की वैक्सीन भी मरहलावार अस्पताल के ज़रिए करवाई जाएगी। तो लोगों से गुजारिश है कि इनका ख्याल रखें और इनको गाहे बगाहे जो है वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल हाजा से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। बिल्कुल, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने दुनियापुर सिविल वेटरनरी अस्पताल में मुर्गियां तकसीम की जा रही हैं। याकूब ताहिर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।